So hello dosto, welcome back to my YouTube channel Hasta Education. So in this video I am going to discuss about the Nernst equation. Okay, so let's get started. So first of all let's see what is it. Okay, what is a Nernst equation? Okay, so it is basically equation which explains the effect of concentration on EMF of a cell. Alright, so this is nothing but a equation which explains the effect of concentration. Alright, effect of concentration on EMF of the cell. Alright, so this is the equation. The equation says that EMF of a cell equal to E naught of the cell minus RT upon NF multiplied by ln Q. Alright, यहाँ पे E naught cell क्या होता है? ये होता है standard EMF of the cell which is given by the standard reduction potential of the cathode minus standard reduction potential of anode. Alright, तो दोस्तों आइए इसके छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं. So as we know that delta G equals to delta G naught plus RT ln Q. So this comes from the Van 't Hoff reaction isotherm. Alright, so delta G equals to delta G naught plus RT ln Q. यहाँ पे delta G क्या होता है? delta G होता है gives free energy change, which is given by minus NF. and delta G naught क्या होता है? ये होता है standard gives free energy change which is given by minus NF E naught cell. Okay, और यहाँ पे जो Q होता है that is the reaction quotient. delta G equal to delta G की जगह हम कितना पूछ सकते हैं? माइनस डेल्टा G माइनस. सिमिलरली डेल्टा G now dividing third the equation by minus NF, we will get E of cell is equal to E naught cell minus RT upon NF ln Q. Right, so this is the Nernst equation. Okay, and this can also be written as E cell equals to E naught cell minus 3.303 RT upon NF log of Q to the base 10. Okay, यहाँ पे बेस ई था तो बेस को हमने बेस 10 पे कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.303. So now this can also be written as E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon 10 log Q to the base 10. ये इक्वेशन तरह आया है by putting R equal to 8.31 Kelvin और टेम्परेचर को हमने कितना लिया है 298 केल्विन. F के जगह में हमने कितना 96500 कूलम. ऑलराइट, यहाँ पे R T और F का वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन आया है. ध्यान रखना है दोस्तों, ये इक्वेशन सिर्फ 298 केल्विन पे यूज होता है. आपका अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों ये देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है. तो दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट EMF ऑफ हाफ सेल. हाफ सेल का EMF निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है. ऑलराइट, सो देयर इज वन नॉट पॉइंट. If net reaction of a cell involves any gas, किसी एक net reaction में अगर gas है तो it take the partial pressure of the gas in ATF. अगर किसी भी cell का net reaction में gas involved है तो we have to take the partial pressure in ATF जो हम Q expression में करेंगे. तो यहाँ पे एक general Q expression है for a reaction A mole of capital A plus B mole of capital B plus C mole of capital C plus D mole of capital D के लिए
ये रहा आपके Q एक्सप्रेशन। ओके, Q एक्सप्रेशन इज गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C टू द पावर C into concentration of capital D for D and concentration of A for A into concentration of capital D power D। ऐसे एलिसिटी क्या होना चाहिए, जैसे अगर गैस होना चाहिए या गैस होना चाहिए। अगर सॉलिड और लिक्विड के केस में इसके कंसंट्रेशन को हम 1 मान के चलेंगे। राइट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। ओके, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हिच इज गिवन बाय जिंक टू Zn2+, उसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.4 मोलर। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का सिंबल दिया गया है। उसके बाद एल्यूमिनियम 3+ टू एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ का कंसंट्रेशन है 0.5 m। ऑलराइट, और यहाँ पे इनोट ऑफ द सेल इज गिवन इज 1.1 वोल्ट। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का ईएमएफ को कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। हियर इज द स्टेप्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो स्टेप नंबर 1 पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, राइट डाउन द एनोडिक रिएक्शन। ओके, तो स्टेप नंबर में आपको एनोडिक रिएक्शन लिखना होगा, यानी एंड यू हैव टू बैलेंस इट। ओके, आपको एनोडिक रिएक्शन लिखना होगा। एनोडिक रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको लिखना होगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑलराइट, आपको स्टेप नंबर 1 में एनोडिक रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करना होगा। ओके, बैलेंस इन द सेंस ऑफ बोथ एटम एंड चार्ज बैलेंस करना होगा। ऑलराइट, ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, यू हैव टू राइट डाउन द कैथोडिक रिएक्शन। ओके, कैथोडिक रिएक्शन यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, तो स्टेप नंबर 2 पे आपको कैथोडिक रिएक्शन यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होगा, उसको फिर बैलेंस करना होगा। अगेन बैलेंस इन द सेंस ऑफ बोथ एटम एंड चार्ज बैलेंस करना होगा। ओके, चार्ज को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू ऐड सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन साइड ऑफ द रिएक्शन। ओके, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करना होगा। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ओके, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इसको आपको सेम करना होगा दोनों इक्वेशन में इन बोथ द रिएक्शन। ओके, बाय मल्टीप्लाइंग द रिएक्शंस बाय सुटेबल फैक्टर। ओके, जो रिएक्शंस होंगे उस दोनों रिएक्शन को सुटेबल फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा एंड मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द टू रिएक्शन है उसको आपको सेम रखना होगा। ओके, स्टेप नंबर 4 में यू हैव टू ऐड द इक्वेशंस। ओके, आपको दोनों रिएक्शंस को ऐड करने होंगे आफ्टर मेकिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के बाद आपको दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। ओके, नाउ यू विल गेट ए नेट रिएक्शन। इस नेट रिएक्शन से आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ओके, ये वैल्यू ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द नेट रिएक्शन ऑफ द सेल। ओके, नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसको हम बोलेंगे n। ऑलराइट, एंड फाइनली आपको राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ q के एक्सप्रेशन लिखना होगा एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ऑलराइट, तो इस स्टेप्स को मैं दोबारा बोलता हूँ। ओके, तो आपको सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस इन द सेंस ऑफ बोथ एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। ओके, सिमिलरली स्टेप नंबर 2 पे आपको कैथोडिक रिएक्शन यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना होगा, उसके भी बैलेंस करना होगा, बोथ एटम बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेम रखना होगा आपको, अगर सेम नहीं है तो। ठीक है, कैसे सेम रखेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन से बाय सुटेबल फैक्टर। ओके,
दोनों रिएक्शन को सुइटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम रखना होगा। कि स्टेप नंबर 4 में दोनों रिएक्शन को ऐड करना होगा आफ्टर मेकिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल रखते हुए दोनों रिएक्शन को ऐड करना होगा। कि स्टेप नंबर 5 में नाउ यू विल गेट ए नेट रिएक्शन। इस नेट रिएक्शन से आपको एन का वैल्यू पता करना होगा। ओके, एंड एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस बोथ द इक्वेशंस। ओके, उसके बाद आपको क्यू का एक्सप्रेशन लिखना होगा, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो जिंक टू जिंक 2+ एंड द कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है 0.4 m है। उसके बाद ये रहा एल्यूमिनियम 3+ टू एल्यूमिनियम एंड द कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है 0.5 मोलर। ओके, इस सेल का हमें EMF निकालना है। तो ये जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे जो जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 जा रहा है, तो 0 to +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑलराइट, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जो है ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम है 3+ से यहाँ पे 0 जा रहा है। ओके, 3+ से 0 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एनोडिक रिएक्शन लिखना होगा, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना होगा। ओके, एनोडिक रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ पे जा रहा है, यानी जिंक रहा इस साइड में, यहाँ पे जिंक 2+। सिमिलर अगर हम लिखेंगे कैथोडिक रिएक्शन, ये वाला हो जाएगा हमारा कैथोडिक रिएक्शन, एल्यूमिनियम 3+ टू एल्यूमिनियम जा रहा है। ओके, सो ये रहा हमारा कैथोडिक रिएक्शन। ऑलराइट, तो इन दोनों रिएक्शन का अभी हमें बैलेंस करना है, बोथ एटम वाइज एंड चार्ज वाइज। देखिए एनोडिक रिएक्शन में यहाँ पे एक जिंक है, इस साइड में भी 1 जिंक है। ऑलराइट, तो ये एटम वाइज तो बैलेंस है, तो अभी इसको चार्ज वाइज बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड में +2 चार्ज है, इस साइड में 0 चार्ज है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली ये कैथोडिक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको इक्वल करना है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 है। ऑलराइट, तो दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए जो पहला वाला रिएक्शन में मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दूसरी वाला इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, ताकि दोनों इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 जिंक + 2 एल्यूमिनियम 3+ गिव्स राइज टू 3 Zn 2+ + 2 एल्यूमिनियम। ऑलराइट, ये है हमारा नेट रिएक्शन। ओके, सो नेट रिएक्शन को बेस करके हमें क्यू का एक्सप्रेशन लिखना है, और जो क्यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, सिंस जिंक और एल्यूमिनियम जो है दोनों सॉलिड है, तो इसीलिए तो हम क्यू के एक्सप्रेशन में इन दोनों को नेगलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये और ये क्या लिखा जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे राइट साइड में जिंक 2+, उसके पावर 3 अपन इस साइड में जो है एल्यूमिनियम 3+, इसके पावर 2 है। ओके, जिंक का कंसंट्रेशन कितना था, 0.4 का क्यू अपन 0.5 का स्क्वायर, इस जो भी आएगा। ओके, देन हमें फाइनली जो एक्सप्रेशन है पुट कर लेना है, E0 माइनस RT/NF ln Q। क्यू का एक्सप्रेशन यहाँ डाल लेना है, और यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा
आपको 6 हो गया। ऑलराइट, दोनों इक्वेशन में जो कॉमन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया वो है 6। सो n का वैल्यू हो जाएगा 6। ऑलराइट, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।